Okay, children, moving ahead to chapter 9 of science. Now we are at the last part of this chapter. The other day I sent you a few notes, and one was regarding law of conservation of momentum. What does this law say basically? It says that the sum of momentum of two objects before a collision is equal to the sum of momentum after the collision, provided there is no external unbalanced force acting upon them. This is known as law of conservation of momentum. Of course, when you are thinking about this, suppose a car is coming from this side. Initially it has speed of mass m1 and u1 is its speed, and another say car is coming from the other side, its mass is m2 and say its initial speed is u2, and when they are coming and suppose they crash together, and after the crash we say that initial momentum yani m1 plus m2 u2 which these cars had, and then after the collision we say the momentum is the same, which m1 v1 plus m2 v2. Of course, one question which will immediately spring in your mind that sir कि जब collision हो गया, जब टक्कर हो गया, उसके बाद तो दोनों cars generally stationary हो जाएंगी. So how come you are getting this v1 and v2? Because वो तो फिर stationary होंगी, तो उनका कभी speed ही नहीं होएगा. But we assume that वो जो collision हुआ, उसमें जो energy निकला, that energy which was expended in that collision, that is equal to this. So that is why we say the momentum before and after is the same. Now we will be doing sums on this. As you can see, it is very clear. The formula m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay. इनमें से m1 और m2 यानी वो सेम रहते हैं. यहाँ पे भी m1 m2 जो भी है वो इधर यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू लेना होता है. Mass always we will take in kg. Remember that. Even if it is given in grams, you will always convert into kg. And this is u1, u2 and v1, v2. In some sums, everything will be very clearly given. And you can just first, of course, always write what is given first before you start using the formula. Then it will be easier for you. Okay. Now here a few rules are there. Now the sums in which gun is involved, we will always take इनिशियल वेलोसिटी यानी u1 and u2 0. जो भी सम होंगे जो गन वाले या राइफल वाले, उसमें आप u1 and u2 हमेशा 0 लेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले उसी पे बेस्ड हम we will just have a look at the sum. Right now we are discussing these three sums one by one, and I will send you the questions later on. Okay. A bullet of mass 20 grams is fired with a velocity of 150 meters per second. Pistol of mass is 2 kg. Find the recoil velocity of the pistol. As I told you the other day, suppose when we fire a gun, then our hand moves. That is the recoil. Okay. So and they asked us to what is the recoil velocity of the pistol when we fire the gun? जो pistol it moves, what is its recoil velocity? So as I told you, in all the sums involving pistol or rifle, initial velocity, because initially हम मानते हैं कि pistol या rifle are at rest या bullet is at rest. So suppose m1 में bullet का मास लेता हूँ तो 20 ग्राम. So and 20 upon जैसे मैंने आपको बताया 1000 आपको करना होगा इसको. u1 0. ठीक है. u1 we will take 0. Similarly m2 अगर मैं पिस्टल का लेता हूँ 2 kg दिया हुआ है तो u2 में लूंगा 0. u1 u2 दोनों 0 लेंगे हम इसमें. अब बुलेट जो है इट हैज बीन फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड. क्योंकि मैंने m1 बुलेट का मास लिया है तो v1 बुलेट का हम लेंगे 150 मीटर पर सेकंड. इसमें इस वाले स्टेप में कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये जो वेलोसिटी है ये 150 मीटर पर सेकंड जो बुलेट की है ये v2 की जगह लिख देते हैं. नो, रिमेंबर जो अगर आपने बुलेट का मास m1 लिया है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आप v1 लेंगे. ओके. अगर आपने सपोज पिस्टल का अगर आपने सपोज m2 लिया होता बुलेट का मास तो आप v2 लेते उसमें. मैंने यहाँ m1 लिया है इसलिए मैं v1 लिखूंगा. एंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल यानी v2 वो हमें नहीं मालूम है तो वो हम क्वेश्चन मार्क. अब इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Obviously
ये तो पूरी टर्म जीरो ही होगी क्योंकि u1 भी जीरो है, u2 भी जीरो है, तो यहाँ मैं कुछ करता नहीं, यहाँ जीरो ही आएगा। और यहाँ m1 ये सपोज मैंने अभी फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ 20/1000, आप कन्वर्ट कर लेना। v1 हमें दिया हुआ है 150 प्लस m2 2 kg 2 and into v2। ओके, यू सॉल्व दिस, ये इस तरफ आएगा तो माइनस साइन आएगा, ध्यान रखना, एंड देन ये नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा जो भी आंसर आएगा। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन व्हेन यू डू द सम द आंसर विल कम इन नेगेटिव, एंड व्हाई इट विल कम इन नेगेटिव, because this is the recoil velocity, and the recoil velocity and it is in the opposite direction, so the answer will come in negative. Okay, for acceleration also sometimes answer can come in negative, for force also sometimes answer will come in negative, and कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर आपका फोर्स सपोज आए -10 न्यूटन, ठीक है, आप सबके पास रेफरेंस बुक्स है या बुक्स के पीछे आप जब आंसर वेरीफाई करते हैं वहां कई बार ये -10 की जगह ऐसे लिखा होगा 10। बेसिकली जब ऐसे लिखा होता है तो इसके आगे एक सेंटेंस हमेशा लिखना होता है कि इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, बिकॉज आंसर एक्चुअली -10 आ रहा है, और अगर आपने -10 लिखा है तो आपको वो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, हमने अभी ये बुलेट वाला सम देखा, ये अब एग्जैक्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सम है, एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो ये आप करेंगे ही फिनिश, वो है पेज सेम सम ऑन पेज 126 क्वेश्चन 3, ठीक है, उस सम का हम जस्ट डिटेल लिख लेते हैं, फिर आप फिनिश आप उसको अपने आप पढ़ते रहना, डिटेल हम आपके लिए लिख देते हैं। वो लिखा है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with the initial velocity of 35 meters per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. सिमिलरली सपोज अब मैं M1 लेता हूँ 4 kg, यानी राइफल का मैंने M1 ले लिया 4 kg, U1 जैसे बताया था 0 तो 0, M2 में बुलेट का ले रहा हूँ 50 ग्राम, एंड इसको आप ऑब्वियसली किस में कन्वर्ट करेंगे, kg में, वो आप कर लेना, एंड U2 मैंने जैसे बताया था हम 0 ही लेंगे। अच्छा, हमें निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, यानी V1 निकालना है, V1 नहीं मालूम है हमको, और क्योंकि मैंने इन दिस सम आई हैव टेकन मास M2 एज 50 ग्राम्स, तो ये जो है हमें बुलेट की जो वेलोसिटी दी हुई है उसने 35 मीटर्स पर सेकंड, तो आप यहाँ पे 35 मीटर्स पर सेकंड लिखेंगे एंड यू विल फिनिश दिस। ओके, सो if a sum of this type comes of bullet and rifle, it is very easy because on one side you will get 0 only, so the sum will happen very fast. Okay, so it is good for us. अच्छा, अब ये क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है पेज 127 पे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बिकॉज इसमें सब कुछ ही गिवन है और काफी क्लियरली गिवन है, सिवाय ऑब्वियसली वन थिंग, बट इसमें कैलकुलेशन ध्यान से करना, बिकॉज कैलकुलेशन है इसमें। लिखा है 2 objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along with the same line and direction with velocity of 2 meters per second and 1 meter per second. 2 objects, एक का मास 100 ग्राम है, इसको आप कन्वर्ट कर लेना, और उसका वेलोसिटी सपोज है हमें दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड। दूसरा मास है वो 200 ग्राम का है, उसका वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड। They collide, and after the collision the first object moves with the velocity of 1.67. They collide, and जो पहला ऑब्जेक्ट है वो 1.67 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। Determine the velocity of second object. इस सेकंड ऑब्जेक्ट का आपको बोला है, तो इसमें M1 U1 दिया है, M2 U2 दिया है, फिर M1 तो है ही आपके पास, V1 भी है, M2 भी है, बस V2 निकालना है आपको, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में बस सब्स्टिट्यूट करना है, डू द कैलकुलेशन एंड जस्ट रिमेंबर टू कन्वर्ट दिस ग्राम टू केजी। ओके, so this was one type of sum. Now we will see the second type of sum. अब एक ये सम है, a girl of mass 40 kg jumps with a velocity of 5 meters per second on a stationary cart. एक कार्ट सपोज रखी हुई है, वो भागती हुई आती है, उस पर जंप करती है। जब वो कार्ट पे जंप करेगी, जंप करने के बाद अगर आप देखो वो कार्ट के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, शी विल बी ऑन द कार्ट, एंड
व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब जब वो जंप करेगी तो जब वो मूव करने लगेगी कार्ट, तो जो वेलोसिटी कार्ट की होगी वही गर्ल की भी होगी। तो जब इस तरह का सम आता है ना कि भाई हम किसी स्टेशनरी चीज पे जंप कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जो है हल्का सा इट विल चेंज, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, और ये मैंने क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि जब वो जंप करते हो आई और वो कार्ट के ऊपर शी ऑन टॉप ऑफ द कार्ट, तो दोनों का मास ऐड हो गया एंड दोनों की वेलोसिटी अब सेम होगी, द वेलोसिटी विल बी द सेम। इन हियर नाउ गर्ल का मास दिया 40 एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, तो 5 लिखा मैंने। कार्ट का मास 3 और इनिशियल यहाँ लिखा हुआ कार्ट स्टेशनरी थी तो उसका u2 0, और फिर दोनों ऐड हो गए क्योंकि गर्ल ने जंप कर लिया उसको। अब आप इस कैलकुलेशन को फिनिश करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये इस तरह की जो सम है जिसमें आप किसी चीज पे जंप कर रहे हैं या एक साथ हो रही है, देन वी यूज दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। सेम ही फॉर्मूला बट हल्का वेरिएशन क्या है, क्योंकि नाउ दे आर टुगेदर सो देयर मासेस नाउ विल बी द सेम। ओके, नाउ अगेन इसके जैसा एक टोटली आइडेंटिकल क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने इनिशियली छोड़ दिया था बिकॉज ये वाला फॉर्मूला हमने नहीं किया था। क्वेश्चन 15 ये है पेज नंबर 129। ठीक है, एक्सरसाइज का an object of mass 10 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meters per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो मास m1 आपको दिया है 1 kg और वो ट्रैवलिंग कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second। तो u1 हो गया हमारा 10 meters per second। It strikes a stationary wooden block and it collides with a stationary wooden block of mass 5 kg। m2 आपको दिया हुआ है 5 kg और स्टेशनरी है ये, तो u2 हमारा 0। Now it sticks to the wooden block, then they both move together in the same straight line। वो इसको स्टिक कर जाते हैं, then they both move together in the straight line। Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact and calculate the velocity of the combined object। Now velocity of the combined object के लिए तो बस ये फॉर्मूला आपको अगेन यूज करना है। m1 u1 है आपके पास, m2 u2 है, देन आप m1 प्लस m2 कर देंगे यानी 1 प्लस 5 यानी 6 kg। 6 इंटू v जो वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट है वो हम निकालेंगे। ओके, जो उसके ऊपर वाला पार्ट है उसने बोला कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। नाउ हमारे पास अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है व्हिच सेज दैट बिफोर इंपैक्ट एंड आफ्टर इंपैक्ट मोमेंटम सेम रहता है। एंड अगर आप यहाँ देखें बिफोर इंपैक्ट हम मोमेंटम हम इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज m1 u1 है, m2 u2 है। अगर ये आप निकालो m1 into u1 1 into 10 10 एंड ये 0, तो 10 प्लस 0 यानी 10 आ गया मोमेंटम। सो ये आप ये लिखेंगे मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट 10 एंड आफ्टर इंपैक्ट आल्सो 10 kg meter per second। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ओके, which is of course of the same type। Now there is one more sum which is this question। Two hockey players, this is the last type of sum of this type। okay, two hockey players collide and become entangled। दो हॉकी प्लेयर है opposite direction से आ रहे हैं, they collide and become entangled। one has a mass of 60 kg and velocity 5 meters per second। the second has a mass of 55 kg and velocity 6 meters per second। in which direction and velocity will they move after the collision। so again क्योंकि इसमें entangled हो रहे हैं यानी मास जो है दोनों का ऐड हो रहा है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v। इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो मैंने सपोज m1 लिया है 60 kg
u1 आपको दिया हुआ है इसमें 5 मीटर्स पर सेकंड, इसका u1 है 5 मीटर्स पर सेकंड, दूसरे का मास है m2 55 kg और इसका वेलोसिटी जो 6 है वो मैं -6 लूंगा, और -6 क्यों लूंगा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो जब ये m1 u1 और m2 u2 में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो वो सब्ट्रैक्शन होगी उधर, ओके, इज इक्वल टू, तो फिर आपको मालूम ही है m1 प्लस m2 दोनों का मास ऐड कर देना इनटू v, तो आपका v निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट वे 2 हॉकी प्लेयर्स वाला, एंड इसके जैसा एकदम आइडेंटिकल सम है वो है क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th जो हमने एक और छोड़ा था, लिखा था 2 objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite directions. The velocity of each object is 2.5 meters per second square before collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after the collision? दो ऑब्जेक्ट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और दोनों का मास आपको सेम ही दिया है, m1 भी 1.5 kg एंड m2 भी 1.5 kg, और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है बट ऑपोजिट लेंगे। तो सपोज u1 हमें एक है 2.5 तो दूसरा u2 आप लेंगे -2.5, ये ध्यान रखना, एक 2.5 तो दूसरा -2.5, एंड देन अगेन ये फॉर्मूला लगा देना और देखना व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन बिकॉज़ दे आर कंबाइंड, ओके। सो नाउ वी हैव डन ऑल द सॉल्विंग सम्स ऑफ दिस चैप्टर। अब केवल थ्योरेटिकल बचे हैं। थ्योरेटिकल सम्स के मैं नंबर्स में आपको ढूंढने के लिए मैं बोलूंगा, मैं वो आई विल गिव यू द क्वेश्चन नंबर्स, you just try to find their answers. Not all answers are there in the textbook, and then I will discuss them in the next class. Okay, cheers.